जल्दी उठता देख सकते हैं? देखिए, ये जो कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क की जो बात कर रहे हैं आप, मुझे लगता है कि इस मीटिंग में ये जो अभी अगले 2-3 दिन में हो रही है, ये भारत ही इस एजेंडे को आगे कराएगा। और मुझे लगता है कि ये जो कोऑपरेटिव एजेंडा है, इसमें भारत पहल करेगा। आपने देखा होगा कि इससे पहले जब G20 की मीटिंग हुई थी और भारत उसके चेयरमैनशिप की हुई थी, तो वहाँ पर भारत ने कई चीज़ों का पहल किया। अब जाके अगर आप डिजिटाइजेशन की बात कर रहे हैं या जिस प्रकार के भारत के पेमेंट सिस्टम्स हैं जो डिजिटल हो गए हैं, इस प्रकार का बढ़ावा जो अगर इस डिस्कशन में आएगा, मुझे लगता आएगा, तो भारत यहाँ पर भी पहल करेगा कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं उनको जिनको भी इसकी सहायता की ज़रूरत है, तो भारत उसको मदद कर सकता है। ये मैं समझता हूँ और ये कटोत्सव हम सीधी तस्वीरें अब देख रहे हैं, क्योंकि बस कुछ ही पलों का इंतजार है। औपचारिक शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसद भवन परिसर में आगमन हो चुका है। अब वो केंद्रीय कक्ष संविधान सदन की ओर आगे बढ़ रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज CSPOC सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। 16 साल बाद भारत को इसकी मेजबानी मिली है और 28वां CSPOC सम्मेलन है ये। और कहीं ना कहीं जो भारत का संसद भवन परिसर है वो आज विश्व भर के लोकतांत्रिक नेतृत्व का केंद्र बना हुआ है और औपचारिक उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों अब होना है। केंद्रीय कक्ष संविधान सदन की ओर प्रस्थान करते हुए, रवाना होते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उनके साथ मौजूद हैं, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश भी मौजूद हैं। ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एक तरफ Excellencies, ladies and gentlemen, हम संविधान Prime Minister of India, श्री नरेंद्र मोदी जी। You are requested to please keep standing for the national anthem. Namaskar. We are deeply honored to host the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, a forum that strengthens democratic institutions through dialogue, cooperation, and shared values. On this occasion, it is my honor to welcome Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Om Birla ji. Dr. Tulia Axon, President, Interparliamentary Union. Dr. Christopher Kalila, Chairperson, Commonwealth Parliamentary Association. And Shri Harivansh, Deputy Chairman, Rajya Sabha. On behalf of the Government of India, I extend a warm welcome to the speakers and presiding officers and respected parliamentarians of the Commonwealth and distinguished guests. This
historic hall is a symbol of India's constitutional journey, and today it bears witness to this largest ever CSPOC conference, a confluence of parliamentary wisdom from across the Commonwealth with the sole objective of strengthening parliamentary democracy and empowering the democratic institutions. May I now invite Shri Harivanshji, Honorable Deputy Chairman of the Rajya Sabha, to kindly deliver the welcome remarks. Honorable Prime Minister Adarniya Narendra Modi ji, Honorable Speaker Lok Sabha and Chairperson of 20th CSPOC Sri Om Birla ji, Honorable President IPU Dr. Tulia Akshan ji, Honorable Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association Dr. Christopher Kalila ji, Honorable Speakers and Presiding Officers of the Parliaments of Commonwealth countries, Excellencies, Honorable Ministers, Government of India, Honorable Presiding Officers from States Legislatures in India, Honorable Members of Parliament India, distinguished delegates, ladies and gentlemen. Namaskar, good morning. It's my great privilege and honor to extend a warm and heartfelt welcome to all of you to this historic Central Hall of the Parliament of India. An edifice that stands as a living symbol of India's democratic journey, constitutional values, and parliamentary traditions. We are deeply honored by the presence of, apart from the President IPU and the Chairperson of CPA, a galaxy of speakers and presiding officers from across the Commonwealth, representing diverse nations, cultures and parliamentary systems, yet we are united by a shared commitment to democracy, the rule of law and representative governance. Excellencies, your presence here today reaffirms the enduring bonds of friendship and cooperation that connect our family of nations. My sincere gratitude to the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for gracing the opening ceremony, which reflects his deepest commitment to the values of parliamentary democracy. This Central Hall has been witness to many defining moments in India's history. From deliberations of the Constituent Assembly that gave birth to our Constitution to historic address by global leaders. It's therefore especially meaningful that this hall today hosts distinguished custodians of parliamentary democracy from across the world. India's parliamentary system draws strength from age-old tradition of dialogue, debate, and dissent. Values that are central to a true democracy. Representative and deliberative bodies of India have existed and flourished for millennium. Your presence here from different regions of the globe reinforces the India's guiding philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, world is one family. Forums such as the CSPOC provide an important opportunity to exchange experiences, share best practices, and collectively reflect on evolving challenges facing democratic institutions, be it in strengthening legislative oversight, enhancing inclusivity, embracing technology, or deepening public trust in democratic processes. As presiding officers, we play a pivotal role in upholding the dignity of legislatures, ensuring fairness in proceedings, and safeguarding democratic norms. Your leadership is central to nurturing vibrant, responsive, and futuristic parliaments that truly reflect the aspirations of the people they serve. We hope that interactions during this conference will further strengthen parliamentary cooperation, foster mutual learning, and contribute meaningfully to the advancement of democratic governance across our nations. On behalf of the Parliament of India, I once again extend a warm welcome to all distinguished delegates. May your stay in India be comfortable, enriching, and memorable. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Honorable Deputy Chairman Shri Harivanshji, for your gracious opening remarks. Excellencies, may I now invite Dr. Christopher Kalila, Chairperson of the Commonwealth Parliamentary Association, to address this distinguished gathering.
Please welcome Dr. Christopher Kalila. The Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, the Honorable Speaker of the Lok Sabha, Shri Omri Bila, the Deputy Chairperson of the Rajya Sabha, Shri Harivanish Nayaran Singh, the IPU President, my colleague, Honorable Dr. Tulia Aksan, speakers and presiding officers, colleagues, members of Parliament, if there are any in the House, distinguished ladies and gentlemen, Namaste, good morning. Let me begin by expressing how delighted I am to address this 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth here in Delhi. And Mr. Chairman, on behalf of the Commonwealth Parliamentary Association, I would like to extend my deep and sincere gratitude to the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi, for gracing this occasion, and also to the Speaker and Parliament and the people of India for their warm hospitality. I speak here as a Member of Parliament from Zambia, as a matter of fact, a backbencher. It is wonderful to be hosted in this historic city, which has long been a center of democratic dialogue and parliamentary tradition. As a parliamentarian, I am an avid reader of a book entitled Parliamentary Practice and Procedure by Kul and Shakda, which focuses on the Lok Sabha. Alongside that, I'm also an avid reader of Erskine May, which focuses on the House of Commons. It's great to see the Speaker of the House of Commons here this morning. This is a book about the functioning of the Lok Sabha. It's widely used in the Commonwealth. I'm therefore honored to step in the Lok Sabha today. Indeed, it is an honor to be in India, the biggest democracy in the world, also known as the mother of democracy. The Commonwealth, as many of you may be aware, is home to more than 2.6 billion people, and half of these live in India. It is therefore befitting that today we are meeting here in India. Honorable Prime Minister Dan Gayat, thank you very much for hosting us here. This conference brings together those entrusted with the stewardship of our parliaments, and as speakers and presiding officers, as has already been alluded to, you play a vital role in upholding constitutional order, safeguarding parliamentary independence, and ensuring that our institutions remain effective, inclusive, and respected by the citizens that we serve. At a time of rapid political and social and technological change, that responsibility has never been greater. Across the Commonwealth, our parliaments, as some of you may know, are facing shared challenges, among others, declining public trust and harnessing the benefits of technological advancements while mitigating the risks they pose, and growing pressures on the security and well-being of members of Parliament and parliamentary staff. On behalf of more than 17,000 parliamentarians across the Commonwealth, I want to be the first one to appreciate you this morning and to say thank you to all of you, the speakers and the presiding officers, for the work that you continue to do, to serve, to mentor, to preside, to be arbiters over the affairs of parliaments in the Commonwealth. Indeed, I say thank you. And coming from the Commonwealth Parliamentary Association Secretariat, we are only there to serve you. The CPA belongs to you. It belongs to you, and I'm saying thank you because you have kept it going. And with the changing political order, please continue to hold the CPA together, as you have always done. You vote out budgets, you send us on these trips, we come to meetings.
If you do not do that, there would be no CPA. So you are the CPA, and thank you to see all of you in record numbers as I'm seeing this morning. Yet we also see remarkable innovation and resilience in many of you. Across the Commonwealth, legislators are strengthening public engagement through digital outreach, youth parliaments and civic education programs, modernizing procedures by introducing hybrid sittings, electronic voting, and enhanced committee scrutiny, and reforming institutional practices to improve transparency, inclusion, and responsiveness. These adaptations demonstrate how Commonwealth parliaments continue to evolve while remaining firmly grounded in core democratic values. This conference, therefore, provides a unique and valuable space for honest and extensive exchange. It allows us to learn from one another's experiences, to share best practices, to reflect collectively on how we can better serve our citizens in the Commonwealth, which is a club of friends brought together by deepening democratic values, as we have been informed by the previous speaker. The discussions over the 5 coming days will address issues that go beyond national boundaries and speak to the health of parliamentary democracy across our Commonwealth. The CPA remains committed to supporting CISPOC in this work through cooperation, capacity building, and the sharing of knowledge across our diverse membership. I encourage all participants in this week's program to engage openly and constructively and to take full advantage of the collective wisdom that subsists in this room. I further want to emphasize that speakers and presiding officers are the glue that holds CPA together. Their commitment and dedication to the work of the CPA is what drives and keeps the CPA relevant among its member parliaments at a global stage. It is through your commitment, our speakers and presiding officers, that subscriptions are paid, that your parliaments participate in CPA conferences, capacity building, etc., etc. Your role, therefore, in CPA is indeed invaluable. On this note, I wish you a productive and successful conference, and once again, I thank our hosts, particularly Prime Minister Modi, for the highest political will to come and attend this conference. Thank you very much. Dhanyavad. Thank you. Thank you, Dr. Kalila, for your insightful reflections and also for reaffirming the spirit of parliamentary cooperation within the Commonwealth. Excellencies, I now have the honor of inviting Dr. Tulia Axon, President of the Inter-Parliamentary Union, to address the conference. Your Excellencies, Honorable Speakers, Presiding Officers, distinguished colleagues, ladies and gentlemen. Let me also join my colleague who has just left the podium to thank the Indian authorities, primarily the Prime Minister, but also the Speaker of the Lok Sabha for their hospitality. We have been very well received. Thank you so much. It is a great pleasure to be here in New Delhi with you for the opening of the 28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth. I am very pleased to see so many of you and some familiar faces, including colleagues who we met recently at the World Conference of Speakers of Parliament in Geneva last July. I am honored to be here representing the Inter-Parliamentary Union, the global organization of parliaments. For more than 130 years, the IPU has believed in parliamentary diplomacy and in the role of parliaments in promoting peace, democracy, sustainable development, and so many other issues. I am also grateful
to our hosts for bringing us together at such an important moment. Dear colleagues, dear friends, we meet at a critical moment. The year 2026 has begun with concerning developments that put forth a painful reminder of how fragile and uncertain the international environment has become. At the international level, multilateralism is increasingly judged not by the values it upholds, but by how quickly it reacts or how visible its actions appear. Patience, compromise, and long-term cooperation often struggle to compete with demands for immediate results. Quiet diplomacy, careful negotiation, and consensus building can seem slow in a world that rewards urgency and spectacle, even though these are precisely the qualities that have sustained international cooperation over time. Similar doubts are being cast on democracy itself. Many citizens question whether democratic institutions can still respond effectively to their concerns, whether they can deliver fairness, stability, and opportunity in a rapidly changing world. When expectations rise faster than institutions can adapt, frustration grows. And when trust weakens, the very foundations of democratic life begin to feel uncertain. These pressures are not separate. They mirror one another. The doubts we hear about multilateralism on the global stage echo the doubts we hear about democracy at home. In both cases, institutions are expected to move faster, to be more visible, to deliver immediate answers. And in both cases, the quieter work of dialogue, procedure, and compromise is too often and too easily mistaken for weakness. This is why, dear colleagues, dear friends, our meeting here matters, and matters now. Conferences like this, one sits precisely at the intersection of these pressures. As speakers and presiding officers, you operate where domestic democracy meets international cooperation. You confront the same forces that challenge both multilateralism and democracy alike, namely polarization, technological disruption, declining trust in institutions, and rising expectations from our constituents. Over many years, I have seen how IPU assemblies bring together parliaments from every region and tradition, with 183 member parliaments and still counting. We are truly a global organization. And again, we are reminded that while our contexts may differ, our challenges are increasingly shared. This is what gives real value to gatherings such as this one. They allow us to listen to one another, to exchange experiences, and to learn how others are navigating these difficult times. In other words, they give us the space to step back from our daily responsibilities and reflect on the deeper meaning of parliamentary leadership, because common problems require common solutions. The topics we will talk about in the next few days are very important. We will discuss intelligence, social media, citizen participation, and the well-being and security of our members in our parliaments, but also staff.
All these things make us ask the best question. How can we make sure that democratic institutions stay strong and trusted in a world that is changing so fast? But I think, dear colleagues, dear friends, that this is also a question that reaches beyond our national institutions and speaks directly to the international order we are part of. As the conference begins, I hope it offers not only reflection, but also direction of where we would want to go, considering the challenges that we go through, that the world is facing, and what we have just witnessed at the beginning of this year. I look forward, dear colleagues, to the discussions ahead and to the insights that we will shape together that are going to shape the entire parliamentary community of the world. And IPU is ready to listen, to learn, and to take at IPU what we will hear, what we will learn from here. I thank you for listening. Thank you, Dr. Jackson, for your thoughtful address and also for emphasizing the importance of strengthening the bridge between the global parliamentary institutions. Ladies and gentlemen, may I now request Shri Om Birla Ji, Honorable Speaker of the Lok Sabha and Chairperson of the 28th CSPOC, to deliver his address. राष्ट्रमंडल देशों के 28वें संसदीय सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भारत के इस ऐतिहासिक संविधान सदन में आईपीयू की प्रेसिडेंट, सीपीए के चेयरपर्सन, राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के पीठासीन अधिकारीगण, भारत सरकार के माननीय मंत्रीगण, राज्य विधानमंडल के अध्यक्षगण, माननीय संसद सदस्यगण, सम्मानित अतिथियों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। इस गरिमामय अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति हम सब के लिए विशेष गौरव का विषय है। आपके दूरदर्शी नेतृत्व में लाए जा रहे नए रिफॉर्म के कारण भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बन रहा है। आपका नेतृत्व वैश्विक चुनौतियों का निर्णायक समाधान दे रहा है और आपके नेतृत्व के लिए दुनिया आपकी ओर देख रही है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहे जाने वाले भारत में लोकतांत्रिक संवाद, सहयोग और साझा मूल्यों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जहाँ हम संसदीय लोकतंत्र की सर्वोत्तम प्रथाओं, नई पहलों और अनुभव को साझा करेंगे। हमारी संसद की 7 दशकों से अधिक यात्रा में हमने जन केंद्रित नीतियों और कल्याणकारी कानूनों के निर्माण से लोकतंत्र को सशक्त किया है तथा हमारी निष्पक्ष निर्वाचन पद्धति ने भारत के प्रत्येक नागरिक की लोकतंत्र में भागीदारी सुनिश्चित की है। इससे लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। संसद और सरकार के साझे प्रयासों से हमने कई अनावश्यक कानूनों को हटाया है, नए कल्याणकारी कानून बनाए, जनता की अपेक्षाओं के अनुसार नीतियां बनाई है। इसका परिणाम है कि आज हम विकसित और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण के लक्ष्य की ओर मजबूती से बढ़ रहे हैं। माननीय प्रतिनिधिगण, राष्ट्रमंडल देशों के इस संसदीय परिवार में विभिन्न देशों के पीठासीन अधिकारियों को वैश्विक महत्व के
वर्तमान मुद्दों पर एक साथ लाने की क्षमता है। आज विश्व अभूतपूर्व तकनीकी परिवर्तन के दौर से गुजर रहा है। एआई और सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिक संस्थाओं की दक्षता और कार्यकुशलता को बढ़ाया है, लेकिन इनके दुरुपयोग से गलत सूचना, साइबर अपराध और सामाजिक विभाजन जैसी गंभीर चुनौतियां भी हमारे सामने है। यह हमारा सामूहिक दायित्व है कि हम इन चुनौतियों पर गंभीरता से विचार कर उसका उचित समाधान निकालें। इथिकल एआई और प्रामाणिक और जवाबदेही सोशल मीडिया आज की आवश्यकता है। मुझे आशा है इस सम्मेलन में हम महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दे पर गहन चर्चा करेंगे और ठोस नीतिगत निर्णय भी लिए जाएंगे, ताकि लोकतांत्रिक संस्थाओं में एआई और सोशल मीडिया के आदर्श उपयोग की कार्य योजना तैयार कर सकें। मुझे खुशी है भारत की संसद और विधान मंडलों में एआई का उपयोग बढ़ रहा है और उन्हें हम पेपरलेस भी बना रहे हैं, और टेक्नोलॉजी के उपयोग से हमने अपनी सभी विधायी संस्थाओं को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की पारदर्शिता नई मिसाल की है। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमने देश की सारी विधान मंडलों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया है। इस सम्मेलन में हम पीठासीन अधिकारियों की निष्पक्षता और न्याय संगतता पर और जनता में संसदों की विश्वसनीयता बढ़ाने पर भी चर्चा करेंगे। हमारी प्राथमिकता ये होनी चाहिए कि जनता की दृष्टि में संसद की विश्वसनीयता और गौरव सदैव अक्षुण्ण रहे। मुझे आशा है इस सम्मेलन में जो विचार विमर्श होंगे उससे हम विधायिका के समक्ष उपस्थित चुनौतियों के सामूहिक समाधान की दिशा में आगे बढ़ेंगे। यहाँ होने वाली चर्चा से हम संसदीय प्रक्रियाओं को और बेहतर बना पाएंगे और सांसदों में जनता की भागीदारी और उनका विश्वास और अधिक बढ़ा पाएंगे। यहाँ पर पधारे आज तक के CAPSU के सम्मेलन में सबसे ज़्यादा प्रतिनिधियों को यहाँ पर आने के लिए मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार श्री ओम बिरला जी, माननीय लोकसभा अध्यक्ष तथा अध्यक्ष 28 CSPOC, distinguished speakers and presiding officers from across the Commonwealth, ladies and gentlemen. At a time when democratic institutions are being reshaped by dialogue, inclusion and cooperation, it's my honor and privilege to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to share his vision and address this distinguished conference. Ladies and gentlemen, Honorable Prime Minister of India. लोकसभा के अध्यक्ष श्रीमान ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की अध्यक्ष तुलिया एक्शन जी, कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष क्रिस्टोफर कलीला जी, कॉमनवेल्थ कंट्रीज से आए स्पीकर्स, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, अन्य डेलीगेट्स, देवी और सज्जनों, फ्रेंड्स, in a parliamentary democracy, your role is that of the speaker. Interestingly, the speaker does not get to speak much. Their job is listening to other speakers. And ensuring everybody gets a chance.
One common thing about speakers is their patience. They handle even noisy and over-enthusiastic members with a smile. Friends, on this special occasion, I warmly welcome you. We are honored to have you with us today. Friends, जिस स्थान पर आप सभी बैठे हैं वो भारत की डेमोक्रेटिक जर्नी का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। गुलामी के आखिरी वर्षों में जब भारत की आजादी तय हो चुकी थी, उस समय इसी सेंट्रल हॉल में भारत के संविधान की रचना के लिए संविधान सभा की बैठकें हुई थी। भारत की आजादी के बाद 75 वर्षों तक ये इमारत भारत की संसद रही और इसी हॉल में भारत के भविष्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय, अनेक चर्चाएं हुई। अब लोकतंत्र को समर्पित इस स्थान को भारत ने संविधान सदन का नाम दिया है। कुछ समय पहले ही भारत के संविधान को लागू हुए 75 वर्ष हुए हैं। मैं इस संविधान सदन में आप सभी अतिथियों का आना भारत के लोकतंत्र के लिए बहुत विशेष है। साथियों, ये चौथा अवसर है जब कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस भारत में हो रही है। इस बार इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य विषय इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। आप सभी जानते हैं कि जब भारत आजाद हुआ तो उस दौर में ये आशंका व्यक्त की गई थी कि इतनी डाइवर्सिटी में भारत में लोकतंत्र टिक नहीं पाएगा। लेकिन भारत ने इसी डाइवर्सिटी को डेमोक्रेसी की ताकत बना दिया। एक सबसे बड़ी आशंका ये भी थी कि अगर भारत में लोकतंत्र अगर जैसे तैसे टिक भी गया तो भारत किसी भी हालत में विकास नहीं कर पाएगा। लेकिन भारत ने साबित किया कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस और डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस डेमोक्रेसी के स्टेबिलिटी, स्पीड और स्केल तीनों देते हैं। भारत दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। आज भारत में यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है।
आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का नंबर 2 स्टील प्रोड्यूसर है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट है। आज भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। आज भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो रेल नेटवर्क है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा मिल्क प्रोड्यूसर है। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर है। फ्रेंड्स, भारत में डेमोक्रेसी का अर्थ लास्ट माइल डिलीवरी है। हम एक लोक कल्याण की भावना से हर व्यक्ति के लिए बिना किसी भेदभाव के काम कर रहे हैं और इसी लोक कल्याण की भावना के कारण बीते कुछ वर्षों में भारत में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। इन इंडिया, डेमोक्रेसी डिलीवर्स। साथियों, भारत में डेमोक्रेसी इसलिए डिलीवर करती है क्योंकि हमारे देश में और भारत में देश की जनता ही हमारे लिए सर्वोपरि है। हमने उसकी एस्पिरेशंस को, जनता जनार्दन के सपनों को प्राथमिकता बनाया है। उसके रास्ते में कोई बाधा ना आए, इसके लिए प्रोसेस से लेकर टेक्नोलॉजी तक हर चीज को डेमोक्रेटाइज किया है और ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट हमारी रगों में, हमारे मन में है, हमारे संस्कार में है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले पूरा विश्व कोरोना की आपदा से जूझ रहा था। भारत में भी संकट कम नहीं था, लेकिन उन चुनौतियों के बीच भी भारत ने 150 से ज्यादा देशों को दवाइयां और वैक्सीन पहुंचाई। लोगों का हित, लोगों की भलाई और उनका कल्याण, ये हमारा संस्कार है और ये संस्कार हमें हमारे लोकतंत्र ने दिए हैं। फ्रेंड्स, many of you know India as the world's largest democracy. Truly, the scale of our democracy is extraordinary. Consider India's general elections held in 2024. They were the largest democratic exercise in human history. Nearly 980 million citizens were registered to vote. This number is larger
than the population of some continents. There were more than 8,000 candidates and over 700 political parties. The elections also saw record participation by women voters. Today, Indian women are not only participating, but are also leading the way. The President of India, our first citizen, is a woman. The Chief Minister of Delhi, the city which we are in right now, is a woman. In rural and local government bodies, India has about 1.5 million elected women representatives. They represent almost 50% of the leaders at the grassroots, which is globally unparalleled. Indian democracy is also rich in diversity. Hundreds of languages are spoken. There are over 900 television channels across different languages. Thousands of newspapers and periodicals are published. Very few societies manage diversity at this scale. India celebrates such diversity because our democracy has a strong foundation. Our democracy is like a large tree supported by deep roots. We have a long tradition of debate, dialogue, and collective decision making. India is called the mother of democracy. Our sacred texts, the Vedas, are over 5,000 years old. They refer to assemblies where people met to discuss issues. Decisions were taken after discussion and agreement. We are the land of Bhagavan Buddha. The Buddhist Sangha used to have open and structured discussions. Decisions were taken through consensus or voting. Further, there is a 10th century inscription from the Indian state of Tamil Nadu. It describes a village assembly that worked with democratic values. There were clear rules for accountability and decision making. Our democratic values have been tested by time, supported by diversity, and strengthened generation after generation. Friends, कॉमनवेल्थ की कुल जनसंख्या का लगभग 50% हिस्सा भारत में बसता है। हमारा प्रयास रहा है कि भारत सभी देशों के विकास में ज्यादा से ज्यादा योगदान दे।
कॉमनवेल्थ के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में हेल्थ, क्लाइमेट चेंज, इकोनॉमिक ग्रोथ और इनोवेशन के क्षेत्र में हम पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने कमिटमेंट्स को पूरा कर रहे हैं। भारत आप सभी साथियों से सीखने का निरंतर प्रयास करता है और हमारा ये भी प्रयास होता है कि भारत के अनुभव अन्य कॉमनवेल्थ पार्टनर्स के काम आए। फ्रेंड्स, आज जब दुनिया अभूतपूर्व परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, तब ग्लोबल साउथ के लिए भी ये नए रास्ते बनाने का समय है। भारत हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर ग्लोबल साउथ के हितों को पूरी मजबूती से उठा रहा है। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने ग्लोबल साउथ की चिंताओं को वैश्विक एजेंडे के केंद्र में रखा है। भारत का ये लगातार प्रयास है कि हम जो भी इनोवेशन करें उससे पूरे ग्लोबल साउथ को लाभ हो, कॉमनवेल्थ देशों को फायदा हो। हम ओपन सोर्स टेक प्लेटफॉर्म भी बना रहे हैं ताकि ग्लोबल साउथ के हमारे साथी देश भी अपने यहां भारत जैसी व्यवस्थाएं विकसित कर सकें। फ्रेंड्स, इस बार की कॉन्फ्रेंस का एक प्रमुख लक्ष्य ये भी है कि कैसे हम अलग अलग तरीकों से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग को प्रमोट करें। इसमें स्पीकर्स और प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ये काम लोगों को देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस में बड़ी भूमिका से जोड़ने का काम है। भारत की संसद पहले से ही ऐसे काम को कर रही है। स्टडी टूर्स, कस्टमाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और इंटर्नशिप के माध्यम से जनता को संसद को और करीब से जानने का मौका मिला है। हमने अपनी संसद में AI की मदद से डिबेट्स और हाउस प्रोसीडिंग्स को रियल टाइम में रीजनल लैंग्वेजेज में ट्रांसलेट करने का काम शुरू किया है। संसद से जुड़े रिसोर्सेज को भी AI की मदद से यूजर फ्रेंडली बनाने का काम हो रहा है और इससे हमारी यंग जनरेशन को भी संसद को समझने, उनको बेहतर अवसर मिल रहा है। फ्रेंड्स, अब तक मुझे आपकी संस्था से जुड़े 20 से ज्यादा सदस्य देशों में जाने का अवसर मिला है। कई सांसदों को संबोधित करने का सौभाग्य भी मिला है। जहां जहां मैं गया मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं हर बेस्ट प्रैक्टिस को लोकसभा के हमारे अध्यक्ष और राज्यसभा के चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन महोदय के साथ आकर के तुरंत अपने अनुभवों को साझा करता रहा हूं। मुझे विश्वास है कि ये कॉन्फ्रेंस सीखने और सिखाने के इस क्रम को और समृद्ध करेगी। इसी कामना के साथ आप सभी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। Thank you, Honorable Prime Minister, for your profound and forward-looking address, which will undoubtedly inspire the parliamentary democracies across the Commonwealth. Ladies and gentlemen,
With this, we come to the conclusion of the inaugural ceremony. Distinguished dignitaries seated on the dais, and all the speakers and presiding officers of CSPOC are requested to now kindly proceed to the courtyard number 9 on your right-hand side for a group photograph with the Honorable Prime Minister. All our dignitaries seated on the dais and all the speakers and presiding officers of CSPOC, you're all requested to kindly proceed to the courtyard number 9, which is on your right-hand side, behind me, that is on your right-hand side, for a photograph with Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I request all other esteemed guests to kindly remain seated. I request all other esteemed guests to please remain seated on your seats and kindly allow for the movement of our distinguished guests, the speakers and presiding officers of the Commonwealth countries, to kindly leave the hall. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में संविधान सदन के केंद्रीय हॉल में राष्ट्रमंडल देशों के लोकसभा अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन किया। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। प्रधानमंत्री ने भारत के पारंपरिक और प्राचीन लोकतांत्रिक स्वरूप का जिक्र किया। उन्होंने वर्तमान में संसदीय प्रक्रिया में जो नई चीज़ें नवाचार समाहित किया है उसका जिक्र किया और उन्होंने ये भी कहा कि संसदीय प्रक्रिया का लाभ, भारत की संसदीय प्रक्रिया का लाभ जो है वो अन्य देशों को भी मिल पाए और महत्वपूर्ण ये है कि कॉमनवेल्थ देशों की संसदों को मिल पाए, उसका भी प्रयास भारत के द्वारा लगातार किया जा रहा है। हमारे साथ सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी महानिदेशक IPA वर्चुअली जुड़ गए हैं और लगातार संजीव चोपड़ा जी स्टूडियो में मौजूद हैं। संजीव जी, कितना महत्वपूर्ण संबोधन रहा जो कि एक विषय रखे गए हैं इस वृहद जो है 28वें CSPOC के को लेकर सभी बिंदुओं को मुझे लगता है प्रधानमंत्री ने यहाँ पर छुआ है। बिल्कुल, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा सबसे बड़ा इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और ये डेमोक्रेसी डिलीवरी भी कर रही है। कि इंडिया में लोग कहते थे कि पहले कि इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतने ज़्यादा लोग हैं तो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी। लेकिन प्रधानमंत्री ने ये बताया कि कैसे इंडिया हैज़ बीन द वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और कैसे जैसे 2024 में इलेक्शन हुए तो प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 980 मिलियन वोटर्स रजिस्टर हुए थे, विच इज़ अराउंड 1 बिलियन। और उन्होंने कहा कि इतनी पॉपुलेशन तो कि कुछ कॉन्टिनेंट्स की है, तो उस हिसाब से कि कितनी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी इंडिया की है। तो उन्होंने ये भी बताया कि ये कॉन्फ्रेंस जैसे इस बार जो 28th कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये इंडिया की चेयरमैनशिप में हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी इस टाइम चेयरपर्सन है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ के, और इंडिया ने 2024 में युगांडा से ली थी और अब यूके के पास ये जाएगी। तो इस कॉन्फ्रेंस में सबसे महत्वपूर्ण आज की डेट में जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यूज़ पार्लियामेंट्स में कैसे करनी है, उसके ऊपर चर्चा होगी और सोशल मीडिया के ऊपर यूज़ ऑफ सोशल मीडिया बाय पार्लियामेंटेरियंस, इसके ऊपर भी चर्चा होगी। इसके अलावा इसके थीम्स में स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी थ्रू प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स, ये भी एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। और इसके अलावा एक हेल्थ ऑफ पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट्री स्टाफ, उनके बारे में भी चर्चा होगी। सो ये कुछ मुद्दे हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडिया हैज़ प्रूव्ड टू द वर्ल्ड कि एक बड़ी सशक्त डेमोक्रेसी है और इतनी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी होने के बाद भी इतनी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी है, तो उसके फ़ायदे इंडिया वांट्स टू हेल्प द अदर नेशंस आल्सो। जी हाँ, और सुरेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभु दयाल पूर्व राजदूत, वो भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ गए हैं। वर्दा ए संबुश भी JNU से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप तीनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र जी, आपसे मैं जानना चाहूँगा, प्रधानमंत्री ने बहुत सारे बिंदुओं का जिक्र किया और अपना जो है संबोधन समाप्त करते करते उन्होंने AI का जिक्र किया और AI का कैसे हम संसदीय प्रक्रिया में इस्तेमाल कर चुके हैं
उसको भी, उस विचार को भी यहाँ पर साझा किया। ये तकनीक को संसदीय प्रक्रिया में जोड़ना और एआई जो कि चुनौती भी है, अवसर भी है, उसको संसदीय प्रक्रिया में जोड़ना और उसका विचार जो है सभी कॉमनवेल्थ संसदों के अध्यक्षों के साथ यहाँ पर साझा करना कितना महत्वपूर्ण? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे बिंदुओं को टच किया, जैसा हमारे पूर्व वक्ता बता रहे थे कि इंडिया की डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन और इंडिया की जो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, फंक्शनल डेमोक्रेसी है, इसके मुख्य बिंदुओं पर उन्होंने चर्चा की। बट जो और महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आपने बताया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या टेक्नोलॉजी का यूज करने की बात है, मैं संसदीय मंत्रालय का सचिव रह चुका हूँ। हमने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन चलाया था, उसकी परिकल्पना करी थी। आज वो लगभग 12 से 15 असेंबलीज में और ये असेंबलीज में चल रहा है। हमारी इंडिया की पार्लियामेंट भी आज ई कंप्लायंट है। आप देखेंगे उत्तर प्रदेश, बहुत सारे प्रदेश हैं जहाँ की पूरा बजट डिजिटल होता है। तो इंडिया हैज लॉट टू ऑफर टू द होल वर्ल्ड कि हम किस तरह से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। डेमोक्रेसी कैन डिलीवर, डेमोक्रेसी कैन बिकम डिजिटल, और डेमोक्रेसी कैन बी आर्गुमेंटेटिव एज वेल एज डिबेटिंग, एंड टॉप ऑफ इट democracy can deliver at a speed and scale which very few countries are developing. और तीसरी बात जो मैं महत्वपूर्ण जो हम भारत के रेफरेंस में है कि आज प्रश्न उठ रहा है कि क्या डेमोक्रेसीज लार्ज स्केल पर, पॉवर्टी पर, इकोनॉमी पर, या मैनेजिंग सोसाइटी है, या जेनजी या टाइप के जो हैं, इसको क्या मैनेज कर सकती है क्या? इस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है कि हमारे यहाँ 700 से ज़्यादा पार्टी, 8000 से ज़्यादा कैंडिडेट, लगभग 98 करोड़ इलेक्टोरेट, इतना आर्गुमेंटेटिव इंडियन सोसाइटी है, फिर भी हम अपने पार्लियामेंट के इलेक्शन 18 बार कर चुके हैं। असेंबलीज को जोड़ा जाए तो 200 बार इलेक्शन हुए हैं। हमारे यहाँ कभी ऑक्युपाई संसद या ऑक्युपाई वॉल स्ट्रीट ऐसी ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं। अम्बेसडर प्रभु दयाल जी शायद इस पर कवर भी करेंगे कि लोग डेमोक्रेसी को कभी मैंने चैलेंज नहीं किया। We established the authority of independent regulatory commission, election commission, process of electorate. There may be contest of ideas, but कभी ये संदेह नहीं रहा कि हमने जिसको सेलेक्ट किया है उसको किसी और ने सेलेक्ट किया है। जनता की मत से और जनता की सहमति से चुनी हुई सरकारें हैं। और लास्ट पॉइंट में एक चीज जरूर कहूँगा कि आज की तारीख में अगर अमेरिका का उदाहरण लिया जाए, जहाँ चेक्स एंड बैलेंसेस फेल हुए हैं, तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो फ्यूचर एक बार हम लोग एकेडमिक सर्कल में डिस्कस करते थे कि पार्लियामेंट डेमोक्रेसी इज नॉट द बेस्ट फॉर्म, वी शुड मूव टुवर्ड्स प्रेसिडेंशियल सिस्टम। तो आज ये चेक्स एंड बैलेंसेस प्रूव कर रहे हैं कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम कैन आल्सो गो रोग एंड कैन बिकम ए नॉन फंक्शनल और कैन बिकम वन मैन्स रूल। तो रूल ऑफ लॉ जो हमारी ट्रेडिशन है, रूल बाय लॉ जो आज कुछ कंटिनेंट में दिख रहा है, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, लेकिन चाहता हूँ कि इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम और इंडियन डेमोक्रेसी और उसमें भी इंडियन की डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, इन तीनों पर चर्चा हो, कारण तीनों चीज़ों में भारत को बहुत कुछ विदेश को और अपने देश को भी ऑफर करना है। और लास्ट में जरूर कहूँगा कि जैसा प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश खाली 600 सांसद ही नहीं है या 6700 सांसद और विधायक या एमएलसी नहीं है। हमारे पास 42 लाख लोगों का 4.2 मिलियन इलेक्टेड पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव है। दे आर द नर्सरी ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप। ऐसी सुविधा किसी और देश में, किसी और कॉन्टिनेंट में नहीं है। शायद चाइना में होगी जहां पार्टी सिस्टम और गवर्नेंस एक है, बट डेमोक्रेसीज में ऐसा उदाहरण पाना मुश्किल है। तो भारत से बहुतों को बहुत कुछ सीखना है। वी हैव डाइवर्सिटी, वी हैव इंक्लूजन, बट हमारे साथ डेमोक्रेसी हमारा सबसे बड़ा हथियार है। जी हाँ, अगर बात करें प्रभु दयाल जी, ये CSPOC या इसमें कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश भी हैं, घाना जैसे और अन्य जो हैं यूरोप के बहुत ही छोटे, जिनकी आबादी कुछ हज़ारों में है, ऐसे देश भी जो हैं इसके सदस्य हैं। उनके संसदों के अध्यक्ष और प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। तो वैश्विक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण हो जाता है ये पूरा सम्मेलन और इससे निकलने वाला संदेश? अब देखिए, मैंने बड़े गौर से सुना जो मिस्टर एस.एन. त्रिपाठी ने कहा। उन्होंने बिल्कुल सही स्पष्ट किया कि कई तरीकों से ये बात अहम हो जाती है कि भारत में इतनी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हो रही है
28th Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth. तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अपने इनॉग्रल एड्रेस में कहा, उसको मैं कहूंगा कि वो एक ब्रिलियंट समिंग अप है भारत की डेमोक्रेसी का, भारत की ग्लोबल इंपॉर्टेंस का, और किस तरह से आज के चैलेंजिंग युग में भारत एक लीडरशिप रोल अदा कर रहा है। देखिए, जैसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में भारत की पॉपुलेशन जो है, सब डेमोक्रेसीज को मिला लीजिए तो 50%। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस में या पूरे डेमोक्रेटिक दुनिया में इंडिया की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्पष्ट किया कि किस तरह से इस कॉन्फ्रेंस में उन बात पे विशेष ध्यान दिया जाएगा, उन बातों पे जो आज की दुनिया में बहुत महत्व रखती हैं। तो जैसे एक तरफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाए, दूसरी तरफ जो तरह तरह की ग्लोबल प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ग्लोबल चैलेंजेस हैं, इस तरह की कॉन्फ्रेंस का आप होना ये बहुत टाइमली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे विचार में अगर स्पीकर्स बैठेंगे तो जिस तरह से ग्लोबल डिप्लोमेसी को बढ़ावा दिया जाता है, उस बात पे जरूर ध्यान दिया जाएगा। और मिस्टर त्रिपाठी ने ये सही कहा कि ये बार बार ये कभी कभी ये सुनने में आता है कि भारत में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी से हट के अब प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जाना चाहिए। तो जो अमेरिका में हो रहा है उससे तो सब देख ही रहे हैं कि जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम कोई चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं लगा पा रहा है। जो प्रेसिडेंट ट्रम्प कर रहे हैं वो लोगों के ना चाहने पे भी करते जा रहे हैं। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस कॉन्फ्रेंस का, जो कि पार्लियामेंट्री लीडर्स की कॉन्फ्रेंस है, स्पीकर्स की, प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी वर्धा जी, यूपीआई ट्रांजिशन में, पेमेंट में जैसे नज़ीर और उदाहरण भारत ने प्रस्तुत किया है पूरे विश्व के सामने, इतनी विविधता, इतना जो है बड़ी पॉपुलेशन के बावजूद भी आज जो है छोटे से छोटा दुकानदार भी, या कह सकते हैं कि रेडी वाला भी जो है इस मोड का इस्तेमाल कर रहा है, वो एक पूरे विश्व के लिए उदाहरण है। तो क्या उसी तरीके से, जिस तरीके से संसदीय प्रक्रिया में हम लोग तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं, नवाचार का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डिजिटल डेमोक्रेसी में भी क्या भारत की संसद जो है एक उदाहरण के रूप में सामने आई है? जी नमस्ते सभी दर्शकों को। आपने बिल्कुल सही कहा, यूपीआई अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड बन चुका है। हम मतलब कई बार मैं अपने दोस्तों के साथ भी बात करती हूँ, सब्जी मंडी भी जाना है तो कैश लेके जाने की आजकल जरूरत नहीं पड़ती है। 10 रुपए का धनिया भी आपको यूपीआई के थ्रू आप खरीद सकते हो। तो ये एक बड़ा डिजिटल रेवोल्यूशन भारत में देखने को मिला है एंड एवरीबॉडी इज फीलिंग एम्पावर्ड। इससे कैशलेस ट्रांजैक्शंस बढ़ रहे हैं, इससे करप्शन कम हो रहा है। अब सवाल यह है कि क्या हम पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग, पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस भी डिजिटाइज वे में कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि पूरा का पूरा डिजिटल होना तो जरूरत भी नहीं है, रिक्वायरमेंट भी नहीं है, और वो बहुत वेलकम मूव नहीं रहेगा। लेकिन पार्लियामेंट का प्रोसीडिंग, जैसे भारत का पार्लियामेंट अपने आप में, अभी मोदी जी ने भी अपने वक्तव्य में कहा, बाकी माननीय पैनलिस्ट इन्होंने भी कहा कि भारत एक ऐसा देश है जहां पे बहुत विविधता है। हमारे जो भाषाएं है, पार्लियामेंट का ट्रांजैक्शन इतने सारे, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेजेस तो 22 ऑलरेडी है, उसके अलावा भी कई सारी बोलियां हैं। उनको रियल टाइम में ट्रांसक्रिप्ट करना और रियल टाइम में उसका ट्रांसलेशन होना, ये एक प्रोसेस एआई के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू ऑलरेडी पार्लियामेंट में एस्टैब्लिश हो चुका है। जैसे मोदी जी ने कहा कि एक कॉमन प्लेटफॉर्म, और जब हम संसद की बात कर ले, जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करें, तो हमें केवल लोकसभा, राज्यसभा और बायकैमरल सिस्टम इतना ही ध्यान में नहीं रखना चाहिए। हमारे जो विधानसभाएं है, हमारे स्टेट्स में जो फेडरल सिस्टम ऑपरेट हो रहा है, पंचायत है, लोकल गवर्नमेंट्स है, उसको भी हमें सामने रखना होगा। और जब एक टेक्नोलॉजी जैसे सेंट्रल पार्लियामेंट में हम इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, उसका बैक एंड फोर्थ लेते हुए उसमें क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, उसको देखते देखते वो नीचे तक परकोलेट होगा। तो जैसे बाकी सदस्यों ने भी कहा, पैनलिस्ट ने भी कहा कि हमारे पास इतने बड़े स्केल पे अगर हम स्पीड और क्वालिटी दोनों मेंटेन करना
चाहते हैं और जो बकायदा हम कर भी रहे हैं, उसके लिए टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हमें उपलब्धि है। उसके साथ साथ मतलब एक तो सारे एक कॉमन प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जो माननीय ओम बिरला जी ने भी कहा कि एक प्लेटफॉर्म पे जहां पे सारे विधानसभा के स्पीकर्स, हर स्टेट से स्पीकर्स आके वहां पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो रहा है। कमिटी जो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है उसके जो प्रोसीडिंग्स हो रहे हैं उसको भी रियल टाइम में, एक तो डिजिटल इंटरफेस की वजह से कमिटी की प्रोसीडिंग्स फ्रीक्वेंटली हो सकती है। अक्सर जब कमिटीज रिकमेंडेशंस मांगती है पब्लिक से, तो उसका भी जो प्रोसेस होता है वो काफी हद तक ऑटोमेटेड हो सकता है, काफी हद तक उसको भी स्पीड मिल सकती है। और एक तरीके से जैसे हम डायरेक्ट रेफरेंडम तो नहीं बोल सकते, लेकिन जिस पे डायरेक्ट वोटिंग होने की एक आशंका कहीं ना कहीं कुछ मुद्दों पे जो पब्लिक ओपिनियन लेना है, वो पॉलिसी के तहत हो, वो लॉ के तहत हो, वो हम देने की एक सुविधा क्या हम टेक्नोलॉजी के साथ उपलब्ध करा सकते हैं। जैसे मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा, जनता सर्वोपरि, जनता जनार्दन। तो ये जो टेक्नोलॉजी का यूज है, एआई किसके लिए इसका यूज हो रहा है, ये प्रोसेसेस है, इसको आसान तो बनाना ही है, लेकिन ये प्रोसेसेस किसके लिए आसान बनी है, तो उसका एंड रिजल्ट लास्ट माइल डिलीवरी जो मोदी जी ने कहा, वो लास्ट माइल डिलीवरी के लिए, जनता जनार्दन के लिए उनका ईज ऑफ लिविंग बढ़े, इसके लिए ये सारे टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा। तो मेरे ख्याल से हम जितना, और मोदी जी हम जानते हैं पहले सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव होने वाले राजनेता अगर कोई थे तो वो मोदी जी थे। तो वो खुद हमारा नेतृत्व ही टेक्नोलॉजी savvy है। तो हम ये बिल्कुल, हमें उम्मीद है कि हमारा पार्लियामेंट्री प्रोसेस भी उसी दिशा में जाएगा और उसका एंड गोल जनता का डे टू डे लाइफ आसान हो। जो भी स्कीम्स पॉलिसीज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है वो आसानी से बिना करप्शन के इफेक्टिव वे में लार्ज स्केल और क्वालिटी में विदाउट एनी लीकेज जनता तक पहुंचे। इसी के लिए एआई का भी और डिजिटल टेक्नोलॉजी